السلام علیکم. ہم سب حضرات معزز قائدین شہر حیدرآباد میں مختلف این جی او سے تعلق رکھنے والے حضرات آج جمع ہوئے ہیں اور ہم 16 تاریخ کے دن جمعہ کے دن مغرب کے بعد اردو گھر مغل پورے میں ایک اجلاس رکھے ہیں. ای وی ایم ہٹاؤ، دستور بچاؤ، دیش بچاؤ. آج ہم بہت پراشوق دور سے گزر رہے ہیں. آج ملک میں افراتفری کا عالم ہے. آج ملک میں فرقہ پرستی بڑھتے جا رہی ہے. ایسے حالات میں 10 سال سے تقریباً ای وی ایم مشین کا استعمال ہو رہا ہے. اس سے پہلے صدیوں سے اس سے پہلے کئی دہوں سے ہمیشہ بیلٹ باکس کا استعمال ہوا. بیلٹ باکس کے اندر ہر شخص فردن جا کر اپنا قیمتی ووٹ کا استعمال کرتا تھا. آج جو ای وی ایم کے اندر جو خرابیاں ہیں، مختلف آرٹیکلز بھی پیپروں میں آئے ہیں، مختلف لوگوں کے بیانات بھی ہیں کہ بھائی آپ کوئی بھی کھٹکا دبا دو آپ، لیکن ووٹ جس کو جانا ہے پہنچ جاتا ہے. جبکہ یہ بھارت دیش ایک بہت بڑا ملک ہے. یہاں کی جمہوریت بھی ساری دنیا میں مشہور ہے. یہاں کا کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے بہت عمدہ کانسٹیٹیوشن ہے. ہم کو جو ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہم اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بھائی ای وی ایم میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، وہ خرابیوں کی وجہ سے لوگ آج ای وی ایم کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور شک و شبہات میں مبتلا ہے. ایسے حالات میں ہمارا پرزور مطالبہ ہے ہمارے جو ہے یہاں کی حکومت سے، ہندوستان کی حکومت سے، کہ بھئی آپ ای وی ایم کا خاتمہ کر دیجئے آپ، اور جو ہے بیلٹ باکس کا استعمال کیجئے، جس سے ہر آدمی اپنا ووٹ دے کے مطمئن رہے گا. آج ایسی حالت کیفیت ہے کہ ووٹ دینے کے بعد بھی لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں ہمارا ووٹ غلط جگہ تو نہیں چلے جا رہا ہے. ایسے حالات میں ہم کو جو ہے کانسٹیٹیوشن کی طرف سے پورا تحفظ دیا گیا ہے، فار دی پیپل، آف دی پیپل، بائی دی پیپل. تو یہ سب کے مطالبات کو حکومت کو سننا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ آج سارے ملک میں ای وی ایم کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے اور بھارت کے عوام یہ جان چکے ہیں کہ موجودہ جو سرکار 2 مرتبہ جیت کر اللہ نے اقتدار کو سنبھالا ہے، یہ ای وی ایم کی ہیرا پھیری کے ذریعے سے انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے. اور ان کے کئی ایم ایل اے ایم پی اس بات کا کھلے طور پر یہ اعلان بھی کیے تھے کہ آپ بٹن کسی بھی جو ہے نا پارٹی کے لیے دبائیے، وہ ووٹ جو ہے نا کمل کو ہی پڑے گا. تو یہاں کھلی طور پر دھاندلی سینہ ٹھوک کر، جیسا کہ ہمارا حیدرآباد کا محاورہ ہے، چوری سو چوری اوپر سے سینہ زوری. تو یہ کام آج ہماری بھارت کی بی جے پی سرکار کر رہی ہے. تو اس کے خلاف جمہوریت کو بچانے کے لیے، دستور کی حفاظت کے لیے جو ایک زمانے سے بھارت میں ایک تحریک چل رہی ہے کہ مشن دستور بچاؤ، تو وہ تحریک کی شاخ الحمدللہ تلنگانہ میں وہ بھی کام کر رہی ہے. تو اسی کے تحت آج جو پورے ملک میں اور خاص طور پر دہلی میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل کر اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں، اور دوسرے علاقوں میں بھی ای وی ایم کے خلاف مسلسل احتجاج ہو رہا ہے. تو اب ساؤتھ کی طرف سے ابھی تک کوئی جو ہے نا ہمارے پاس ایسا احتجاج نہیں ہوا. تو الحمدللہ ہماری ٹیم، اور نہ صرف ہماری ٹیم بلکہ ہمارے شہر اور تلنگانہ کے جتنے بھی دینی، ملی، سماجی تنظیمیں ہیں اور جتنے بھی سوشل ورک کرنے والے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے بھی نمائندے ہیں، سب نے
इस बात का तहैया किया है कि अब हम साउथ से एक यहाँ से तूफान खड़ा करेंगे और मरकजी सरकार को बताएंगे कि हम जो है ना इस ईवीएम के खुले तौर पर हम खिलाफ है और ईवीएम को हम जो ना रद्द करते हैं। तो इसीलिए नारा दिया गया है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, दस्तूर बचाओ और अब की बार बैलेट पेपर सरकार, ये नारा है। तो साउथ में और हैदराबाद में एक बड़ा एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने के लिए इंशाअल्लाह ताला 16 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब उर्दू घर मुगलपुरे में एक कुल जमाती मशावरती इजलास रखा गया है, जिसमें दीनी, मिल्ली, समाजी और सियासी तंजीमों को भी जो है ना मदऊ किया गया है। और उसके बाद हम रमजान शरीफ से बहुत पहले एक एहतजाजी प्रोग्राम हम तरतीब देंगे और जिसमें महमूद पराचा साहब भी जो है ना शरीक होंगे और भी जो ईवीएम के खिलाफ जो जहदकार है उनको भी जो है ना इन्वाइट किया जा रहा है और हमारे मुल्क के दीगर जो है ना हमारे स्टेट से भी जो इस काम से जुड़े हुए हैं उनको भी मदऊ किया जा रहा है। इंशाअल्लाह हमारा ये एहतजाज एक तारीखी रहेगा और शहर हैदराबाद से एक तूफान उठेगा। तो मैं इस प्रेस मीट के जरिए हमारे तेलंगाना और ख़ास तौर पर हैदराबाद के तमाम जमातों के नुमाइंदा हजरात से मैं ये पुरजोर अपील कर रहा हूँ कि आप जुमा के दिन उर्दू घर मुगलपुरे में बाद नमाज मगरिब के तशरीफ लाइए और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अपने ज़र्रीन मशवरों से नवाजिए। हम तमाम मिलकर एक मुत्तहिदा तौर पर अब हम जो है ना एक लाहे अमल तरतीब देकर इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। और ये मीटिंग रखने का मकसद ये है, ये किसी एक तंजीम, एक फरीक का काम नहीं है, बल्कि तमाम भारतीयों का काम है जो सेकुलरिज्म पर जिसका इखान है, जो जमहूरियत बचाना चाहते हैं, जो दस्तूर बचाना चाहते हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि हम इस काम को आगे बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग जो है ना इंशाअल्लाह उर्दू घर मुगलपुरे में शिरकत फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला बतारीख 15 फरवरी 16 फरवरी बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब बामुकाम उर्दू घर मुगलपुरा चारमीनार के अंदर एक मीटिंग मुनाकिद की जा रही है, जिसमें खासकर मौजूदा हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम के मसले को लेकर के जिस तरीके से अवाम के अंदर तशवीश पाई जा रही है और पिछले एक दहे से यानी 2 मरतबा जो हिंदुस्तान की तारीख के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसके मुतालिक अवाम के अंदर जो फिक्र है और अवाम खासकर ईवीएम के अंदर जो धंधालियाँ हो रही है इसको लेकर के बहुत ही परेशान है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ शख्सियत सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचे साहब ने ये जिम्मेदारी ली है कि सारे हिंदुस्तान में इस मसले पर आवाज़ उठाए और ऐसे अहबाब, ऐसी तंजीमें, ऐसे एडवोकेट्स और सोशल वर्कर्स जो कोई भी इस मसले में दिलचस्पी रखते हैं, इनके साथ मिलकर के इस मसले को सारे हिंदुस्तान में जो है उठाया जाए और इसके खिलाफ सब मिलकर के एक आवाज़ बन करके ईवीएम को ख़त्म करके बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराने के लिए जो है कोशिश जारी है। तो इसी मकसद से शहर हैदराबाद के अंदर उर्दू घर मुगलपुरे के अंदर आने वाले जुमे को 16 तारीख के रोज़ मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमेटी तेलंगाना में कायम हुई है उसी की जानिब से ये मीटिंग रखी जा रही है। तो मैं शकील दयानी और शहर हैदराबाद की मारूफ शख्सियत खैरुद्दीन सूफी साहब और इसके तंजीम से जुड़े हुए दीगर अहबाब सब के सब मिलकर के ये मीटिंग मुनाकिद कर रहे हैं। हम सब जो है खासकर जो है अवाम उन्नास से गुजारिश करते हैं, जो कोई अहबाब इस तंजीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और ईवीएम के मुतालिक जो तहरीक सारे हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर पे इलेक्शन जो करवाना चाहते हैं, इसके मुतालिक जो है मशवरात दिए जाएंगे
और खासकर सोशल वर्कर्स जो इस मसले में जो है मुतहरिक है, और जो भी अहबाब इसके मुतालिक जो है हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, हम तमाम के तमाम लोगों से जो है, खासकर जो है मीडिया न्यूज चैनल से जो है और प्रिंट मीडिया जो भी इसके अंदर जो है ताउन करना चाहते हैं, हम तमाम के तमाम अहबाब से जो है गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाले जुमे के दिन हमारे साथ जुड़िए, इस मीटिंग के अंदर जो है आप भी शामिल होकर के इसका एक हिस्सा बनिए और अपना अपना कीमती मशवरा दे करके आने वाले वक्त में शहर हैदराबाद के अंदर जो एक बड़ी तहरीक बन करके उभरने वाली है, रियासत तेलंगाना के अंदर जो है एक एजुटेशन चलाने वाले हैं, इसके लिए आप लोग जो है अपना कीमती मशवरा दीजिए और इस मसले में जो है हमारा साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है महमूद प्राचे साहब भी जो है शहर हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं, तो इसी दौरे को जो है रखने के लिए हम आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला मशवरा लेंगे। तो मैं आपके चैनल के जरिए जो है शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना की आवाम को जो है यही पैगाम देना चाहता हूं कि आने वाले जुमे के दिन जो है आप सब लोग जो है उर्दू घर बाद नमाज मगरिब पहुंचिए। इंशाअल्लाह ताला वहां पर हमारी सारी की सारी टीम मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज का ये हमारा हंगामी इजलास और ये मुशावरती जो प्रोग्राम यहाँ पर प्रेस मीडिया के तौर पर हमने जो किया है, इसका एक मकसद ये है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम मशीन को लेकर बहुत सारी जो है एहतजाजी तंजीमें दिल्ली में और इससे हटकर दूसरे इलाकों में बहुत सारे धरने पर और न जाने एहतजाज में लोग जो है घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ी शर्म की बात यह है कि पूरे मुल्क की जो मीडिया होती है वो इसको आज कवरेज नहीं कर रही है। क्यों? इसलिए कि शायद हो सकता है कि मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि वो ईवीएम को हटाना नहीं चाहती होगी। लेकिन हम जानते हैं ये भी कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आप अमेरिका लीजिए या कनाडा लीजिए या ऑस्ट्रेलिया लीजिए या फ्रांस लीजिए, जहाँ कहीं भी इंतखाबात जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ पर बैलेट पेपर ही इस्तेमाल होता है। वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं, क्या उनको नहीं मालूम है? मालूम है, इसीलिए वो लोग बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं और वोट को सही अंदाज में अवामी हक का जो है एतबार करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर 10 सालों के अंदर ये बात देखने को मिल रही है कि ईवीएम के ज़रिए से बहुत सारे घोटाले हुए और जो हुकूमतें तख्त पर नहीं बैठना थी वो हुकूमतें तख्त पर बैठ गई और इसके साथ साथ अपनी जो है अनानियत और न जाने हिटलरी के तौर पर मुसलमान हो या माइनॉरिटीज़ हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, किसी भी तबके के रहने वाले हो, सब के लिए जीना मुश्किल कर दिया जा रहा है। इसी के तहत 16 तारीख बरोज़ जुम्मा शहर हैदराबाद के अंदर मोगलपुरा उर्दू घर चार मीनार के दामन में एक जो है मुशावरती इजलास रखा गया। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से और दूसरे जितने भी तंजीमें हैं, समाजी हो, मिली हो, सियासी हो, मदारिस के उलमा और हुफ़ाज भी इसमें ज़रूर तशरीफ़ लाएं, क्योंकि वो भी जो है इस मुल्क के शहरी हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना मुनासिब समझता हूँ कि जो ताजिर हजरात हैं वो भी इसमें शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि एक मुल्क का मामला है और हमारे दस्तूर को बचाने का मामला है, दस्तूर की हिफाजत का मामला है। तो इसीलिए बहुत कीमती वहाँ पर एक जो है उर्दू घर के अंदर प्रोग्राम रखने की कोशिश और सही की जा रही है। आप तमाम हजरात के सपोर्ट के बगैर और ताउन के बगैर ये प्रोग्राम और इसका जो है धरने का और एहतजाजी प्रोग्राम रखने का मुनज़्ज़म तरीके से एक प्रोग्राम हम रखना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे सदर साहब ने कहा था कि एक ऐसा प्रोग्राम हम साउथ इंडिया की तरफ से पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं जो शायद ही तारीख रकम कर सके। तो मैं हम तमाम से गुजारिश करता हूँ कि 16 तारीख बरोज़ जुम्मा आप तमाम हजरात बाद मगरिब उर्दू घर मोगलपुरे में तशरीफ़ लाएँ और अपने अपने इजहार ख़यालात का इजहार फरमाएँ और कीमती मशवरों से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल अल्लाम खान अमीन, माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट सोसाइटी जनरल सेक्रेटरी, आज यहाँ पर मेहदीपट्टनम पर जो प्रेस मीट लगाई गई है, ये आने वाले 16 फरवरी बाद नमाज मगरिब मोगलपुरा उर्दू घर में जो एक अहम इजलास है, जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ के नारे पर जो है दी गई है।
इंशाअल्लाह उम्मीद है कि तमाम हैदराबाद के शहरी इसमें बढ़ चढ़ कर इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे और हम सब एक चीज तारीख बना चुके हैं। हम मिलियन मार्च की कामयाबी जो हैदराबाद के शहरी ने दिया है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ में भी इंशाअल्लाह तमाम मकतब फिक्र के लोग, तमाम मसलक के लोग, तमाम खतीब और आइम्मा लोग इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम में शामिल होकर इंशाअल्लाह अपने कीमती ख्यालात का जो है इज़हार करेंगे और हमारे मुल्क को किस तरीके से बेहतर अंदाज में जो है बैलेट बॉक्स से जो है हम अगली सरकार को ला सकते हैं, उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।